Hello, students. So, today in this class, we are going to see chapter number 5, quadratic equations. Okay. So, quadratic equations is a chapter in which you are going to see equations of degree 2. So, when I talk about equation, what is meaning of equation? Equation means any expression which is equated to 0. The word quadratic means any expression which has degree 2. Okay, quadratic means degree 2. Linear means before it you must have studied linear means degree 1. After quadratic you will see another that is called cubic, which means degree 3. Then after that you will see biquadratic, biquadratic. Biquadratic means degree 4. But in this chapter we are just going to see degree 2 equations. Our restriction is to see degree 2. When we'll be done with this topic, in the further sessions, when we'll starting with the study of the polynomials, we will see degree 3. And when we will go in higher classes, we will learn about another more degrees that are included in the theory of equations. So, and this chapter, quadratic equation, is one of the important chapter which plays a vital role in the mathematics in algebra part. Not only in algebra part, it is also very much important in other part of mathematics like calculus. Okay, in calculus it is very much important. You will learn so many things, but as part of the syllabus in class 10th, we are going to see just the study of the roots in this chapter. Okay, and the behavior of the roots and their conditions. Okay, so let's start the session. First of all, I would like to introduce this quadratic equation, how the definition of quadratic equation is to be given, and then further we will enter into the chapter in a deep manner. Okay, fine. So let's start with the introduction. Okay, so an equation with one variable. I will explain this term. What is the meaning of an equation with the one variable? Anyway, you have studied in this previous class, in which the highest power of the variable is 2 is known as quadratic equation. Okay, so an equation with one variable, sorry, I have not written one variable. Okay, sometimes it happens, kabhi kabhi hota hai. So an equation with one variable in which the highest power of variable is 2. Okay, so I'll give you one example. मैं आपको example देता हूँ इसके लिए. Like 3x square plus x plus 1 equal to 0. ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. क्यों क्वाड्रेटिक इक्वेशन है भाई? क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसलिए है, सबसे पहला डेफिनेशन को हम लोग समझते हैं. इसमें जो भी वेरिएबल इन्वॉल्व हुआ है, वट एवर द वेरिएबल इन्वॉल्व इन दिस, इट्स जस्ट एक्स. एक्स के अलावा कोई और वेरिएबल नहीं है. दूसरा, इसका हाईएस्ट पावर इसके अंदर जो वेरिएबल का है वो कौन है? वो 2 है. ओके, तो हमारे सारे रिक्वायरमेंट्स फुलफिल हो रहे हैं इसमें. यस. अब तो इस तरह से जो भी इक्वेशंस दिखेगा, और एग्जांपल प्रोड्यूस करते हैं. 5x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 6 इक्वल टू 0. और इक्वेशन दिखाते हैं एग्जांपल के तौर पे. x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0.
एक्स स्क्वायर माइनस 7x plus 12 equal to 0, right? And many more. Infinite equations we can give. Infinite. ठीक है, लेकिन एज अ एग्जाम्पल लिखते लिखते हमको कोई जनरल फॉर्म पता होना चाहिए ना, कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म क्या होगा, राइट? तो हम लोग इसको एक नोट करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हेडिंग देंगे स्टैंडर्ड फॉर्म। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होना चाहिए? तो स्टैंडर्ड फॉर्म इसका होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। अच्छा, इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन कब बोलेंगे? यहां पे देखिए हमारे पास सारे के सारे जनरल टर्म्स हैं, राइट? तो हमें इसको प्रॉपरली डिफाइन करना पड़ेगा कि ये कब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोला जाएगा। डिग्री 2 है, यस ऑफ कोर्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए एलिजिबल है, लेकिन यहाँ पे जो ए बी और सी है, इनके ऊपर हमें कुछ कंट्रोल्स लगाने पड़ेंगे, राइट? कंट्रोल्स रहेगा तो ही हम इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोल पाएंगे। सो वेयर वेयर ए कॉमा बी कॉमा सी आर रियल नंबर्स, ओके? रियल नंबर्स का अपना अलग दुनिया है, डीप स्टडी इसमें भी होगी। और क्योंकि हमें एक्स स्क्वायर यानी डिग्री 2 को सेव करके रखना है, वो हमारे पास रिटेन्ड रहना चाहिए, तो हमें कंट्रोल देना पड़ेगा कि उसमें से ए नॉन जीरो है, राइट? अच्छा, अब हमने बोला है एक्स क्या है, तो एक्स इज अ रियल वेरिएबल, रियल वेरिएबल, ओके? ठीक है, अब हम बात करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को हमने जान लिया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हमने स्टैंडर्ड फॉर्म ले लिया। अब बात करते हैं कि इसका आगे इसके अंदर हम कैसे एंटर करें। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है? किसी भी चैप्टर को पढ़ने के लिए आपको दो क्वेश्चन जानना होगा, व्हाट, व्हाई, एंड उसके अंदर जो भी चीजें होने वाली हैं उसके लिए आपको पढ़ना होगा हाउ। हमने व्हाट कर लिया, वाई ये है, वाई का मतलब क्या है? वाई का आंसर मैंने पहले दे दिया है कि वाई वी स्टडी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट टू स्टडी द डिफरेंट पार्ट ऑफ द मैथमेटिक्स। और इनफैक्ट यही नहीं, आपको रियल लाइफ में भी इसके एग्जांपल्स बहुत सारी जगह मिलेंगे, ओके? ठीक है, अब अंदर की चीजें में जाते हैं, डीप इसके अंदर उतरते हैं और धीरे धीरे उनको समझते हैं, ओके? तो सबसे पहला, अब हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इक्वेशन इक्वेशन देख करके हमारे दिमाग में आता है कि इस इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका। तो हमारा अगला जो एम है, और इस पूरे चैप्टर का एक ही मेन एम होगा, इस पूरे चैप्टर में मेन एम एक ही है। मैं आपको मेन एम लिख के देता हूं। मेन एम ये है कि हमें इसको सॉल्व करना है, टू सॉल्व, हमें इसको सॉल्व करना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मेन एम है सॉल्व करना। सॉल्व करके क्या मिलेगा भाई? एक्स की वैल्यू मिलेगी, ओके? एक्स की वैल्यू क्या कही जाएगी उसका अब नाम देते हैं, नामकरण करेंगे, नया नया आया है तो उसका नाम है रूट, ओके? रूट, रूट का मतलब क्या है वो समझते हैं, ओके? सो अ रियल नंबर, अ रियल नंबर, आपने रूट के बारे में पहले भी पढ़ा है, रूट कहो या सॉल्यूशन कहो, जीरोस कहो, जीरो कहो, करेक्ट? इसके कई नाम हैं। तो अ रियल नंबर से अल्फा, एक अल्फा एक रियल नंबर ले लीजिए, विथ सेटिस्फाई, विथ सेटिस्फाई द क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो बताना पड़ेगा। अब हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म को हमेशा लेके चलेंगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, हमेशा कंडीशन देना है एटलीस्ट, बाकी और कुछ नहीं तो ए नॉट इक्वल टू 0 को रिमाइंड करते चलो। आप लोग जहां भी लिखेंगे इसके बिना ये इक्वेशन वैलिड नहीं है, इसके बिना इस इक्वेशन वैलिड क्यों नहीं है? अगर मान लो ए 0 हो गया तब तो ये लीनियर इक्वेशन में टर्न अप हो जाएगा, क्योंकि हमारा इस चैप्टर का मोटिव नहीं है पढ़ने के लिए, राइट? तो ए नॉट इक्वल टू 0 लिख के चलना ही पड़ेगा हमेशा, दिस इज द मेन रिक्वायरमेंट फॉर दिस चैप्टर, ओके? सो अ रियल नंबर से अल्फा which satisfy the quadratic equation is called
a root of the equation. अब ये तो रहा इंग्लिश में बोल देना कि ये भाई ऐसा अगर होता है तो रूट होगा। अब यहाँ मेन वर्ड जो है हमारा, वो है ये सेटिस्फाई। सेटिस्फाई का मतलब क्या है वो हमें देखना पड़ेगा। सेटिस्फाई का मतलब है इस एक्स को मैं अल्फा से रिप्लेस करूंगा, और रिप्लेस करके भी मुझे आंसर जीरो आना चाहिए। दैट इज ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी इक्वल टू जीरो। अगर ऐसा होता है तो अगर ऐसा होता है तो अल्फा इज द रूट ऑफ द इक्वेशन। अल्फा इज द रूट ऑफ द इक्वेशन। ओके। अब हम बात करते हैं कि टाइप्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कितने होते हैं। रूट जान लिया, स्टैंडर्ड फॉर्म जान लिया, अब हमें यह भी जानना होगा कि टाइप्स कितने हैं इसके। तो शॉर्ट फॉर्म में टाइप्स लिखने की कोशिश करेंगे। टाइप्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके। इसके जो है दो दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एज पर योर सिलेबस। फर्स्ट इज एडफेक्टेड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब एडफेक्टेड में क्या होता है? एडफेक्टेड का मतलब यह है एडफेक्टेड का मतलब यह है कि इसमें केवल स्क्वायर टर्म होगा और एक्स वाला टर्म होगा। यानी जो लास्ट का सी पार्ट है वो नहीं होगा। लास्ट का सी पार्ट नहीं होगा। सो इन दिस एडफेक्टेड में क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या लिखना होगा? इट कंटेन्स, देखो क्वाड्रेटिक है तो स्क्वायर टर्म तो रखना ही है, ये तो जाहिर सी बात है। तो इट कंटेन्स कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड कोएफिशिएंट ऑफ एक्स। अब बात करते हैं प्योर प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक्स वाला टर्म नहीं होगा, यानी ये बीच वाला टर्म बी एक्स, यानी केवल ए एक्स स्क्वायर और सी वाला टर्म होगा। तो इट कंटेन्स कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड कांस्टेंट टर्म। ओके, कांस्टेंट टर्म। फाइन। तो प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है हमने इस तरह से देख लिया। फाइन। तो बात करते हैं इसको आगे ले चलने के लिए सबसे मेन रिक्वायरमेंट जो है वो है डिस्क्रिमिनेंट। इसका जो मेन पार्ट है जो रूट्स के बारे में बताएगा। अभी आपने क्या क्या देखा, एक बार रिव्यू करते हैं। डेफिनेशन देखा, स्टैंडर्ड फॉर्म देखा, उसके बाद रूट के बारे में देखा, रूट यानी जीरो बोल दो, सॉल्यूशन बोल दो। उसके बाद आपने टाइप्स देख लिया। ये सारे के सारे चीजें जनरल हैं। जो मेन रिक्वायरमेंट है रूट्स का स्टडी करना और रूट्स के बारे में बोलना। ओके। तो रूट्स के स्टडी के लिए हमें जो मेन रिक्वायरमेंट है वो है डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट का ही सारा गेम है इस चैप्टर में। डिस्क्रिमिनेंट के बारे में अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया, आपके 10th में अगर आपने पढ़ लिया, आगे के 11 12 आपके क्लियर रहेंगे। डिस्क्रिमिनेंट एक ऐसा टॉपिक है जो पूरे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को डायरेक्शन देता है और पूरा का पूरा गेम इसके ऊपर है। ओके। तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है वो बताता हूं। फॉर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन
ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, मैंने बोला था ना a नॉट इक्वल टू 0 लेके चलना है, लेके चलना पड़ेगा। द एक्सप्रेशन b स्क्वायर माइनस 4ac इज कॉल्ड डिस्क्रिमिनेंट। आगे आप देखेंगे ना, जब जब आप ग्राफ पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, अभी तो नहीं है फिलहाल के सिलेबस में, बट मैं इन जनरल बता देता हूँ, किसी भी चैप्टर को पढ़ने के लिए आपको आगे का क्यों पढ़ रहे हैं भाई, क्यों क्यों पढ़ा जा रहा है ना, वो भी बता दे रहा हूँ। तो आगे जो भी आप पढ़ोगे डिस्क्रिमिनेंट की वजह से आपको पता चलेगा आगे, ठीक है। ओके, इसको डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं, एंड इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल डी और डेल्टा, डेल्टा भी बोलते हैं, राइट। तो हम लोग डी यूज करेंगे। ओके, तो 10 क्या देखा, देयरफॉर डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू है। ओके, डिस्क्रिमिनेंट को पढ़ेंगे तो हम रूट्स के नेचर के बारे में बात करेंगे, यानी मेरा जो अगला टॉपिक होगा वो होगा नेचर ऑफ रूट्स के बारे में डिस्कस करने के लिए। नेचर ऑफ रूट्स, नेचर ऑफ रूट्स में पहला जो इसका सब पार्ट होगा वो होगा कि अगर डी अगर ग्रेटर देन 0 है तो होगा क्या, देन रूट्स आर अनइक्वल एंड रियल। रियल मीन्स रियल नंबर्स, रूट्स आर अनइक्वल, अनइक्वल मतलब डिफरेंट होंगे। कब होगा, डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 होगा। डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, यानी आप इक्वेशन से जब बी स्क्वायर माइनस 4ac को कैलकुलेट करोगे और कैलकुलेट करने के बाद बी स्क्वायर माइनस 4ac का सॉल्यूशन यानी जो वैल्यू आंसर आएगा वो अगर ग्रेटर देन 0 हो गया तो आप बोल सकते हो कि भाई रूट्स आर अनइक्वल। अनइक्वल का एक अनदर वर्ड हो यूज कर सकते हैं, डिस्टिंक्ट। कोई कोई जगह आपको डिस्टिंक्ट लिखा जाएगा, ओके, आप कहीं कहीं डिस्टिंक्ट वर्ड में भी देखेंगे इसे। तो अनइक्वल और रियल, रियल तो जाहिर सी बातें होनी होनी। सेकेंड पार्ट, अगर डी 0 हो गया तो, यानी अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 हो गया तो देन रूट्स आर इक्वल एंड रियल। ओके, या रियल एंड इक्वल, रियल एंड अनइक्वल ऐसे भी बोल सकते हो, नो प्रॉब्लम। थर्ड, अगर d लेस देन 0 है तो क्या, देन रूट्स आर कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट्स। टोटल का टोटल वर्ड्स ही आपको 10th में नहीं देखना है। इनफैक्ट ये थर्ड वाला पॉइंट अभी के सिलेबस में नहीं है, अभी के सिलेबस में नहीं है, तो मैं यहाँ पे कमेंट मेंशन कर दूंगा, ठीक है, नॉट इन सिलेबस। ओके, सिलेबस में नहीं है तो अभी नहीं करना है इसे, ठीक है। 10th के लिए, 10th लेवल के लिए पॉइंट नंबर 1 पॉइंट नंबर 2 पे फोकस करेंगे, राइट। कि डी अगर ग्रेटर देन 0 होगा तो क्या होगा, डी इक्वल टू 0 होगा तो क्या होगा, क्या क्या होगा भाई, डी अगर ग्रेटर देन 0 होगा तो रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल यानी डिस्टिंक्ट, एंड डी अगर 0 होगा तो रूट्स आर रियल एंड इक्वल। ओके, सॉल्व करते वक्त, फैक्टराइजेशन मेथड बताते वक्त मैं आपको बताऊंगा कि कैसे इस कंडीशंस को यूज करना है। ओके, अब मेन आता है कि और अगला पार्ट इसमें
कि क्या ये कहाँ पे हमें काम आएगा और ये कैसे आ रहा है। मैं ये पॉइंट नंबर 1 2 कहाँ से बात कर रहा हूँ। आप जरूर सोचते होगे कि सर इसका क्या क्या कहाँ से ला रहे हैं आप, ये आप डायरेक्टली कैसे बोल रहे हैं। मैथ में तो यही एक चीज है कि कोई भी चीज को हम डायरेक्टली नहीं बोलेंगे, यानी उसके पीछे चलता हुआ कुछ रीजंस होगा, बिहाइंड प्रूफ कुछ रन होगा। तो उस प्रूफ को हम लोग रन करते हैं, उस प्रूफ को देखते हैं और उस प्रूफ से कुछ ना कुछ आगे के चीज निकल के आएगा, उसको भी देखेंगे। ओके, ठीक है। उसका चीज अब मैं अभी डायरेक्टली उसका नाम नहीं दूंगा, मैं एक लाइन का गैप छोड़ूंगा और उसका नाम आगे देंगा दे दूंगा कि आपको क्या आएगा, वो नाम क्या है। ठीक है, चलो। कभी कभी क्या होता है, आंसर से क्वेश्चन बना लेना चाहिए, है ना। मैथ में ये हमेशा आप करोगे तो कई कई बार आपको अगर ऐसा करते रहोगे ना तो आपको बहुत सारी चीजें याद हो जाएंगी अपने आप, और ऐसी हैबिट बनाने के बाद आपको खुद से सारी चीजें, जो जो भी चैप्टर में आप देखोगे तो 1 और 2 टाइम्स पढ़ने के बाद आपको समझ में आ जाएगा और आप खुद से कर लेंगे। चलो, मैं भी ट्राई करता हूँ। देखिए, प्रूफ करने से पहले सबसे पहले मैं किसके बारे में स्टडी कर रहा हूँ, जाहिर सी बात है मेरे पास और कुछ नहीं है, केवल एक ही चीज है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो लेट ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। मैंने बोला ए नॉट इक्वल टू 0 लेना ही है। बी अ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, ले लेंगे। ठीक है, मैं ए नॉन जीरो ले रहा हूं, यहां से मुझे इसका बेनिफिट उठाना है अब। ओके, तो अब मैं डेरिवेशन की तरफ चलता हूं। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। मैं क्या करूंगा, ए कॉमन कर लूंगा, ए कॉमन कर लूंगा। अगर ए कॉमन करूंगा तो क्योंकि एक्स स्क्वायर के पास तो ए है, इसलिए वो तो कोई बात नहीं है, लेकिन बी के पास तो ए नहीं है, बी के पास ए नहीं है, तो क्या होगा, बी अपॉन ए एक्स हो जाएगा। सी के पास भी नहीं है तो सी अपॉन ए हो जाएगा, इक्वल टू 0 हो गया, है ना। अब ए को ना 0 के तरफ भेज दो, सो देयरफॉर क्या दिखेगा, एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए एक्स प्लस सी अपॉन ए इक्वल टू 0। अब एक काम करते हैं, इस साइड इस सी अपॉन ए को इधर भेज देते हैं, तो क्या दिखेगा, एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स इक्वल टू माइनस सी बाई ए। अब देखो, हमने क्लास 8 में से लेकर के एक फॉर्मूला पढ़ा है, हम कहीं पे भी बैठे रहते हैं, किसी भी छोटे बच्चे को भी देखेंगे वो फॉर्मूला पूछ लेते हैं, है ना। आज उस फॉर्मूले को भी यूज भी करेंगे। हमने पढ़ा है ना, ए ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये जो फॉर्मूला है, ये होता है कंप्लीट स्क्वायर का फॉर्मूला, ये उसको बोलते हैं कंप्लीट स्क्वायर का फॉर्मूला। यहाँ पे हमारे पास उसे बनाना है, उसे हमें इंट्रोड्यूस कर यहाँ पे लाना है, इंक्लूड कर देना है। ओके, इस फॉर्मूले को इंट्रोड्यूस करके उस फॉर्मूले को इंक्लूड करना है, राइट। इंट्रोड्यूस कैसे करेंगे, हम यहाँ पे बनाना पड़ेगा। कैसे बनाएंगे भाई, देखो ए स्क्वायर है यहाँ पे फर्स्ट टर्म, यहाँ एक्स स्क्वायर है, वेरी मच ट्रू। चलो, पहला डील हो गया। दूसरा टर्म चाहिए था 2ab, लेकिन इसमें से ए का टर्म, ए की जगह जो वर्क कर रहा है वो एक्स वर्क कर रहा है। प्लीज कंपेयर, प्लीज ट्राई टू कंपेयर, तभी आप समझेंगे, नहीं तो ये नहीं समझ पाएंगे। ए की जगह पे कोई बैठा है तो वो एक्स है, यानी यहाँ पे एक्स तो हो गया, एक्स का काम हो ए का काम हो गया। यहाँ पे जो बी है वो बी यहाँ पे बी बाई ए है, जो बी का काम कर रहा है वो बी बाई ए है। लेकिन व्हाट अबाउट टू, टू तो नहीं है, टू तो नहीं है, तो टू को लाना पड़ेगा। मैथ में इतना चीज का फ्रीडम रहता है कि जब कुछ नहीं रहता है यहाँ पे तो एक्स्ट्रा लाने के लिए बैलेंस कर लो, टू ला दो और यहाँ पे टू को बैलेंस कर दो, राइट। और एक्स, अच्छा, इसको अभी क्लोज नहीं करूंगा। अब यहाँ लास्ट थर्ड टर्म है बी स्क्वायर, यानी बी के जगह पे बी बाई 2a है ना, तो मैं काम करता हूँ बी बाई 2a के स्क्वायर को ऐड करता हूँ। ठीक है, ये ला दिया मैंने एक्स्ट्रा, मैंने बोला बैलेंस करना पड़ेगा। हमें एक काम करते हैं,
माइनस सी बाई ए है, इधर मैंने ऐड किया, इधर भी ऐड कर लो, इक्वेशन बैलेंस्ड है भाई। जीरो को जीरो ही ऐड किया है, मैंने कुछ एक्स्ट्रा तो ऐड किया नहीं है। ओके, अब आप देखेंगे ना, ये साइड आप देख रहे होंगे, ये दोनों कंपेयर हो रहा है, एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर, करेक्ट। टू ए बी दिख रहा है, टू ए बी टर्म, बी स्क्वायर जैसा दिख रहा है। यानी मैं आंख बंद करके, अब सच में मत बंद कर लेना, एक्स प्लस बी बाय टू ए का होल स्क्वायर इक्वल टू, इसको सॉल्व करते हैं, माइनस सी बाई ए प्लस बी स्क्वायर बाई फोर ए का स्क्वायर, राइट। सो देयर फोर एक्स प्लस बी बाई टू ए का होल स्क्वायर इक्वल टू, एलसीएम ले लो भाई, फोर ए स्क्वायर, और इसको ट्रांसफर करो। तो ये अगर आप सॉल्व करेंगे ना, तो सबसे पहला प्लस वाला साइड है, तो प्लस वाले को प्लस में लिख लेता हूं पहले ही, और माइनस, यहाँ एक ए एक्स्ट्रा है तो केवल फोर ए सी आएगा। अब यहाँ पे आप रिलेट करेंगे, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी यहां से आ रहा था, राइट। अब हम देखो, यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ पे नंबर है, तो टेकिंग बोथ साइड स्क्वायर रूट, मैं रीजन यहां मेंशन करूंगा, तो ये दिखेगा एक्स प्लस बी बाई टू ए इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन फोर ए स्क्वायर। रीजन देना जरूरी है, राइट। रीजन क्या है? टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। ठीक है, यहाँ पे हम इसका एक बार और सिंप्लीफिकेशन करते हैं, तो x प्लस बी बाई टू ए इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन फोर ए का स्क्वायर, यानी टू ए दे देगा। अब देखो, ये भी टू ए है, ये भी टू ए, यानी मैं बैलेंस कर इधर इसको ला करके एक प्रॉपर फॉर्म दे सकता हूं, तो x इक्वल टू माइनस बी बाई टू ए प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए। देखो भाई, दोनों का डिनोमिनेटर तो सेम है, जब डिनोमिनेटर सेम तो हम इसको डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं। सो देयर फोर एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए। यानी अब हमने एक कुछ तो सॉल्व कर लिया, कुछ नया लाया, कुछ नया फॉर्मूला जैसा दिख रहा है ये, राइट। कुछ नया फॉर्मूला जैसा दिख रहा है, एक मिनट बॉक्स को चेंज करते हैं, कुछ नया फॉर्मूला जैसा दिख रहा है। और क्या ये फॉर्मूला क्या हो सकता है? इस फॉर्मूले का नाम दिया गया क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। इस फॉर्मूले का नाम दिया गया क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, इसको श्रीधराचार्य मेथड भी बोलते हैं, श्रीधराचार्य मेथड, इसको मैथमेटिशियन श्रीधराचार्य जी ने दिया था। ओके, ठीक है। अब मैं बात करता हूं इसमें कि कहां से, क्या ये नेचर ऑफ रूट्स क्या हमने इससे डिसाइड किया? अगर हाँ तो कैसे किया? ओके, इसको अगर मैं आगे प्रोसीड करूं, तो आप अगर देखेंगे तो ये दिखेगा इस तरह से, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस, मैंने ऊपर बताया कि बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी और कुछ नहीं बल्कि डिस्क्रिमिनेंट है, यानी इसको मैं लिखूंगा कैपिटल डी अपॉन टू ए। ओके ओके, तो अब देखो, ये स्क्वायर रूट में है, अगर ये स्क्वायर रूट ऑफ किसका नहीं निकलता है, टेंथ लेवल में मैं, आप देखे होंगे, आज तक आपने अगर पढ़ा होगा कि हमें जब भी, इनफैक्ट क्लास फिफ्थ सिक्स्थ से रूट्स पढ़ाए रहे हैं, तो हमारे टीचर्स ने हमें क्या पढ़ाया है कि रूट ऑफ पॉजिटिव नंबर्स या रूट ऑफ नॉन नेगेटिव नंबर्स। हमें बोला गया क्या कि रूट ऑफ नेगेटिव नंबर्स नहीं, नहीं, हमारे लेवल में, हमारे अब तक के स्टडीज में नेगेटिव नंबर्स का रूट एग्जिस्ट नहीं करता है, आगे करता होगा, अब बात की बात जाने। ओके, यस करता है, उसको हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। ओके, तो यहाँ पे जो है पॉजिटिव नंबर्स का ही रूट एग्जिस्ट करेगा,
इसीलिए अगर मैं बोल दूं कि ये डी पॉजिटिव है, अगर डी पॉजिटिव है तो हमारे पास निकले दो नंबर। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो प्लस भी है और माइनस भी है। दो नंबर कौन से होंगे, मैं अलग से बता रहा हूँ। एक नंबर होगा माइनस बी प्लस रूट डी अपॉन 2a, और दूसरा नंबर होगा माइनस बी माइनस रूट डी अपॉन 2a। ओके, तो ये दो नंबर्स हैं, दोनों डिस्टिंक्ट हैं। इसीलिए पहला पॉइंट का जो डिस्क्रिप्शन मैंने दिया कि अगर डी ग्रेटर देन जीरो है तो रूट्स आर अनइक्वल यानी डिस्टिंक्ट आया, और रियल नंबर्स ऑफ कोर्स वो रियल नंबर होंगे। अगर डी जीरो हो गया तो अगर आप डी जीरो देखेंगे ना, तो डी जीरो हो गया तो यानी रूट वाला टर्म ही खत्म हो गया। तो केवल और केवल आपके पास बचेगा एक्स इक्वल टू माइनस बी बाई 2a, विच इज नथिंग बट द इक्वल रूट्स, एक ही रूट्स है, मतलब ट्वाइस रिपीट करेगा और रियल होगा। अगर डी नेगेटिव हो गया तो ये नंबर कॉम्प्लेक्स बनेगा, विच इज नॉट इन आवर सिलेबस, मैंने पहले ही लिख दिए रखा है। तो हमारा मेन अटेंशन ऑफ द पॉइंट होगा आइदर डी ग्रेटर देन जीरो और डी इक्वल टू जीरो। तो हमने क्या देखा, हमने देखा कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बन गया हमारे पास, राइट, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अच्छा, इसमें जो मेथड हमने फॉलो किया है ना, वो कंप्लीट स्क्वायर मेथड फॉलो किया है, कंप्लीट स्क्वायर मेथड। तो बेसिकली कंप्लीट स्क्वायर मेथड से आप कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे एक टिप दूंगा और ट्रिक भी बोलूंगा। टिप और ट्रिक ये है कि जब भी रूट ऑफ बिगर नंबर देखो, डोंट गो फॉर फाइंडिंग इट, गलतियां होंगी। रूट ऑफ वेरी बिग नंबर्स, डोंट ट्राई वेरी मच। टू अ सर्टेन लेवल डू नॉट गो फॉर इट, गो विद द फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड्स को यूज करो, फॉलो करो, अदरवाइज रूट्स में गलतियां होने के चांसेस ज्यादा हैं। इनफैक्ट बहुत सारे रूट्स तो ऐसे हैं जिनको हमें आंसर निकालना भी जल्दी पॉसिबल नहीं है। तो रूट्स के लिए हम डायरेक्टली नहीं जाएंगे। ओके, फाइन। तो मैंने आपको बता दिया कि रूट्स का नेचर कैसा होता है, मैंने आपको बता दिया कि रूट्स को जो है कैसे स्पेसिफाई किया जाता है ना, कि भाई पॉजिटिव कब होगा, अनइक्वल कब होगा, रियल कब होगा, सेम कब बनेगा, है ना। ओके, तो अभी अभी मैंने बोला कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिग्री टू है। आगे चलते हैं। डि, डिग्री टू है यानी डिग्री टू से क्या लेना देना है, मैं बार बार चिल्ला रहा हूं आपको कि स्टार्टिंग के चैप्टर से ही मैं बोले जा रहा हूं, डिग्री टू है, डिग्री टू है, डिग्री टू है। क्या डिग्री टू से कुछ फायदा हो रहा है, मेन क्वेश्चन है ये। क्या डिग्री टू हमारे लिए कुछ काम कर रहा है, यस। क्या हमें यहाँ दिख रहा है, मेन बात यह है कि हमारा ऑब्जर्वेशन क्या है। अगर हम ऑब्जर्व कर पाते हैं मैथमेटिक्स में ना, तो ये हमारा प्रॉपर स्टडी होगा। क्या डिग्री टू से हम कुछ एनालाइज कर रहे हैं, यस। क्या एनालाइज कर रहे हैं, एनालाइज ये कर रहे हैं, हमारा ये एनालिसिस हो रहा है कि डिग्री टू से होने का मतलब है इसके पास दो रूट्स होंगे। अब आपके मन में आएगा कि सर दो रूट्स कौन से होंगे, तो अब हम बताते हैं कि x इक्वल टू, मैं यहाँ पे रूट्स के बारे में लिखूंगा कि x इक्वल टू पहला रूट माइनस बी प्लस रूट डी। मैंने लिखा पहले भी था लेकिन मैंने स्पेसिफाई करके वर्ड नहीं बोला ये। और दूसरा रूट माइनस बी रूट डी अपॉन 2a। इसमें से आओ नामकरण करते हैं इसका। नामकरण, एक का नामकरण कर दो भाई, ये मेरा अल्फा है और ये मेरा बीटा है। ये मेरा अल्फा और ये मेरा बीटा, करण एंड अर्जुन। ओके, सा अब इसके ऊपर गेम चलेगा, अल्फा और बीटा के ऊपर गेम चलेगा, है ना। पहले स्टार्ट कहाँ से हुआ, पहले डिस्क्रिमिनेंट ने गेम में एंट्री मारी, फिर डिस्क्रिमिनेंट ने अपने टीम बनाई। टीम कैसे बनाया, टीम बनाया, बोला कि मेरे को क्वाड्रेटिक फॉर्मूला ला के दो, मैंने बना दिया। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बनाने के बाद बोला कि मैं दो बार आता हूँ, मैं दो जगह से आता हूँ, एक ये और एक ये। उसमें सारा का सारा खेल रूट डी का है। रूट डी ने बोला कि मैं पॉजिटिव होऊंगा तो मैं अलग अलग रखूंगा, डिवाइड एंड रूल करूंगा। डी अगर जीरो हो गया तो सेम हो जाएगा। देखो यहाँ रियल लाइफ का भी एग्जांपल मिलता है। अगर आप इसको डिस्टिंग करेंगे तो डिवाइड एंड रूल करना पड़ेगा, डिवाइड एंड रूल अपने आप होगा। अगर आप न्यूट्रल रहेंगे
तो आप सेम हो जाएंगे, दो लोग के बीच में अगर आपका न्यूट्रल नेचर है तो आप सेम हो जाएंगे। ओके, तो अब अल्फा एंड बीटा इनने एंट्री मारी है। ओके, एंड अल्फा एंड बीटा के आगे का क्या सीन होगा, इसके अंदर के क्या और कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, वो हम उसे नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ठीक है।